Namaskar everyone. So welcome to the room of your wisdom. Fine. So in this is our first class, and in this video classes we are going to discuss the basic concepts of 10th standard. Basically, we will focus on the NCERT part because it is just the starting of the session. So first we'll go with the basic concepts, and then we'll complete with the NCERT exercises. And further, after completing the whole NCERT book, we'll go with the extra questions, which will include previous year questions also. So without wasting the time, let us quickly begin our first chapter. The first chapter of grade 10 NCERT is real numbers. Fine. So, and in this video, we are going to discuss some basic concepts that are required to understand this topic, real numbers. Fine. So, what we are going to discuss here is the first thing that we are going to discuss is what is a number. Next, we are going to discuss about type of numbers, then fundamental theorem of arithmetic. All these topics we are going to discuss in detail, so don't worry. So next one is we are going to discuss that if a prime number p is dividing a square, then it also divides p. If a prime number p is dividing a square, then it also divides a, where a is a positive integer. And the last topic that we are going to discuss here is the square root of a non-perfect square number is an irrational number. यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे फिफ्थ वाले टॉपिक में कि अगर आपने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिया है तो देन दैट स्क्वायर रूट इज एन irrational. Fine, it is an irrational number. So let us quickly begin our video. Let us start with numbers, then type of numbers, then next we'll discuss fundamental theorem of arithmetic, then next is the theorem for the division by prime numbers, and last one is how to prove any given number as irrational number. So let us quickly begin. Okay, so the first topic that we have to discuss is numbers. Look, before going to numbers, if I am making this symbol, so what is coming to your mind when you see this symbol? When you see to the symbol, the thing that comes to your mind is sound A. If I am making this symbol, then what is going to come to your mind? The sound E. Means what we are doing, we are basically giving the sound some representations. We are giving the sound some representations through symbols. है ना? तो अगर हम हमारे पास क्या था, ह्यूमंस वर हैविंग वोकल कॉर्ड्स और हम कुछ साउंड प्रोड्यूस कर सकते थे, तो उन साउंड्स को अगर मुझे किसी और को कन्वे करना है कि सपोज आई एम नॉट एबल टू सी द पर्सन एंड आई हैव टू कन्वे दैट आई एम मेकिंग दिस साउंड, तो how I can convey that thing? I can use some symbols to convey that sound. Fine. Similarly, we are having numbers. So what are numbers? Numbers are also some symbolic representations, and sounds are to sounds we are giving the letters as the symbolic representations. तो हम numbers किसको देते हैं? तो numbers are what? They are the symbolic representations. They are the symbolic representations. They are the symbolic representations to measure or count quantities. To measure or count quantities. Fine. So now I hope it is clear to everyone that what is a number. A number is basically a symbolic representation to measure or count quantities. Second thing that we have to discuss here is types of numbers. Fine. Types of numbers. This topic we are going to study by classifying the numbers into different categories or different types. Fine. So let us quickly begin without wasting the time. Yes, but so all of you pay attention here now. So I'm making a classification or a number chart. Fine. So first we have understood what is a number. Now how basically we can divide the numbers? We can divide the numbers into two categories. First of all, the first category is real numbers, and the second one is imaginary numbers. So whatever the numbers that you have studied from your nursery class till your 9th standard and even in your 10th standard, what you are going to study, all those numbers belong to the category
रियल नंबर्स, एंड दिस इज ओनली द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। फाइन, तो हम ये देखेंगे रियल नंबर्स क्या होता है और ये इमेजिनरी नंबर्स क्या है। दिस इमेजिनरी नंबर्स, I will just give you a basic idea because this you have to study in detail in your 11th standard in the topic complex numbers. So we'll have a video on the 11th standard also. So later on when that videos are coming there, you can check what are the imaginary numbers. Fine. So imaginary numbers हमारे क्या होते हैं? If we take square root of any negative value, if we take square root of any negative integer, then that value, that number is an imaginary number. Fine, because square root of negative integers are not possible. और यहाँ पे रूट -5 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it as root of -1 multiplied by root of 5. So it is iota into root 5. हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 या स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से, एंड दिस आयोटा इज रिप्रेजेंटिंग द imaginary numbers. Fine. So this is all about imaginary numbers that we have to discuss in 10th standard. फिर इसके बाद में आगे वाला part we have to study in 11th standard. So now the first thing that is we have understood is the numbers can be basically real numbers and imaginary numbers. So now from here we will classify again real numbers. Real numbers can further be classified into two parts. First one is rational numbers and second one is irrational numbers. Second one is irrational numbers. Fine. These are the basic classification of real numbers. इससे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती होगी कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है रियल नंबर मीन्स विच हैव रियल एग्जिस्टेंस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन, दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. एनी नंबर दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड means which has its which can be represented on a real number line, that is the real number. Fine. Then real numbers can be further classified into rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers को हम represent करते हैं by the symbol q. और इसका logic क्या है, हम इसको q से क्यों represent करते हैं, that I will tell you. First, let us quickly discuss what are irrational numbers. Once you understand what are irrational numbers, you will understand the reason of representing it by q. फाइन. तो देखो सबसे पहले रेशनल नंबर्स होते क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मैंने वर्ड यूज किया एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन द नंबर इज गिवन टू यू इन इट्स रॉ फॉर्म, इट इज इन p बाई क्यू फॉर्म. लेकिन कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में. एनी रैशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, राइट? लाइक इफ आई एम राइटिंग -1. So if -1 is a rational number, if -1 is a rational number, then this -1 can be converted into p by q form. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? It is -1 upon 1 where the denominator is 1. So let us complete the definition of rational numbers now. So what are rational numbers? Any number that can be represented in the form of p by q where q is not equals to 0, जहाँ पे हमारा denominator 0 नहीं है. Why this denominator is not 0? देखो अगर आपने q की जगह 0 लिख दिया तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? It will become p upon 0. And we know that in mathematics division by 0 is not possible. या फिर हम क्या बोलते हैं? The denominator is 0, then this term will become not defined. और एक चीज और ध्यान रखनी है, नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी से कंफ्यूज नहीं करना है. इन्फिनिटी इज अ डिफरेंट थिंग, नॉट डिफाइंड इज अ डिफरेंट थिंग. नॉट डिफाइंड का मतलब है कि हमें पता नहीं है कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे कैसे बिहेव करेगा. फाइन. जैसे अगर हमारे घर में जूसर है तो अगर आप उसमें कोई भी फ्रूट डालोगे तो यू विल गेट द जूस. लेकिन अगर उसमें हम पत्थर डालेंगे तो हमें पता नहीं है कि हाउ इट विल वर्क. द फंक्शन ऑफ दैट जूसर इज नॉट डिफाइंड फॉर द इनपुट ऑफ स्टोन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड. और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी वैल्यू जो डिफाइन तो है, मतलब वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी है या इतनी ज्यादा छोटी है और इतनी रैपिडली वो चेंज हो रही है कि हम बता नहीं सकते व्हाट इज द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू. दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट. फाइन. तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पे चलते हैं फिर से. Any number which can be expressed in the form of p by q where q is not equals to 0, and if we have to write the rational number in the simplest form तो हमारे p और q belong करेंगे co prime integers को. This is the epsilon symbol. This is the
एप्सिलॉन सिंबल इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। सो p कॉमा q बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब है ऐसे इंटीजर्स जिनका HCF आपस में 1 होता है। What are co-prime integers? The integers whose HCF is 1 means if you are writing your rational number in the simplest form, so your numerator and denominator should be co-prime integers. Fine. So I hope this definition is clear to everyone और ये आप definition 8th standard में पढ़ भी चुके। Irrational numbers क्या होते हैं? Which cannot be expressed in p by q form. Which cannot be expressed. Which cannot be expressed in p upon q form. Fine. ये तो बात हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस की, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फाइन। तो देखो इट इज वेरी सिंपल। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को p by q फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब हम उसको डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो विल गेट अ result in the form of quotient. So p by q that is equals to what? When p divided by q, this value will represent quotient of the division. और देखो इस क्वेश्चन से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो हमारा रैशनल नंबर है हम उसको q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दिस p by q इज रिप्रेजेंटिंग द क्वोशिएंट ऑफ दिस डिवीजन। फाइन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि if we are having a rational number then it will be in the form of p by q, and p by q means division, so we'll get some quotient. So if your p is exactly divisible by मीन्स q is a factor of p, तब तो आपका क्वोशिएंट आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट अ नेचुरल नंबर एज द क्वोशिएंट। फाइन। लेकिन अगर हमारा p q से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं फिर? देन इफ वी वांट टू एक्सप्रेस इट वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ सम डेसिमल, क्योंकि अगर q इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p देन योर क्वोशिएंट विल बी अ डेसिमल नंबर। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर होगा तो वो डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अब देखो अगर कोई भी नंबर डेसिमल की फॉर्म में है तो वो 3 तरीके का हो सकता है कि या तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, है ना, लाइक 2 के बाद मैंने लिखा 2.25, सो आफ्टर दिस 2.2 आफ्टर दिस 0.25 दिस नंबर इज एंडिंग, इसके बाद में कोई भी और डिजिट नहीं आ रही है। सेकंड क्या हो सकता है कि वो एंड ना हो, है ना, लेकिन अगर वो एंड नहीं होगा तो फिर दो पॉसिबिलिटी है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं वो रैंडमली चलती जा रही हैं कुछ भी, दे आर नॉट एंडिंग। फाइन। एंड दे आर नॉट फॉलोइंग एनी पैटर्न, दे आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। या फिर क्या हो सकता है कि अगर ना तो वो टर्मिनेट हो रही है लेकिन वो रिपीट हो रही है, बट इंस्टेड दे आर रिपीटिंग, दे आर नॉट टर्मिनेटिंग बट दे आर रिपीटिंग। सो third possibility is like if I'm writing 2.25 then again 25 then again 25 and so on, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.25 बार। तो बेसिकली ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, कि या तो डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी या तो एक डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगी, मतलब डिजिट्स चलती जा रही है। और डिजिट्स अगर चलती जा रही हैं तो उसके फिर दो केसेस हो गए कि या तो आपकी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, रिपीट नहीं हो रही है, या तो आपकी डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो बेसिकली दीज थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द केस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स। फाइन। अब हम बात करते हैं कि इसका हमारे रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से क्या कनेक्शन। देखो अगर मैंने 2.25 लिखा तो इसको मैं बोलता हूँ इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज? टर्मिनेट। अगर मैंने लिखा 2.253143 एंड सो ऑन तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फाइन। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब खत्म होना, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और ये वाला भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इन दोनों बाद वाले केसेस में हमारे पास एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है एंड इट इज नॉन रिकरिंग, इट इज नॉन रिकरिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज नॉन रिपीटिंग। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग। क्लियर? तो देखो अब रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से ये कैसे रिलेटेड है? इफ योर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो इन दोनों केसेस में आपका नंबर होता है रैशनल नंबर, देन योर नंबर इज अ रैशनल नंबर। फाइन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारे पास ये बीच वाला केस है,
तो in this case your number is an irrational number. Clear? I think it is clear to everyone that if the decimal expansion of any number is either terminating, या तो खत्म हो जा रहा है या फिर खत्म नहीं हो रहा है तो repeat हो रहा है, then it is a rational number, otherwise it is an irrational number. Fine. So the second way to define rational and irrational numbers is by their decimal expansions. और हम क्या बोल सकते हैं कि अगर decimal expansion terminate हो गया या तो खत्म हो गया या फिर खत्म नहीं हुआ तो repeat होता गया, तो हमारा नंबर है irrational number, और नहीं तो हमारा नंबर है रैशनल नंबर. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर. हाँ तक सभी को क्लियर है? फाइन. आगे चलते हैं फिर हम. जस्ट अ मिनट, लेट मी क्विकली इरेज इट, then we'll go on the classification of rational numbers. Fine. Okay, so it is done. Yes, done. देखो तो हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स कौन से हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं. p बाई क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं मतलब जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स. या फिर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में बात करें तो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फाइन. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना खत्म होगा. नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा ना तो रिपीट होगा. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. 9th स्टैंडर्ड में हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का. वो क्या क्वेश्चन था कि पाई इज एन इरेशनल नंबर और ए रैशनल नंबर. तो देखो अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 3.1415 एंड सो ऑन, एंड इट इज कीप ऑन गोइंग. मतलब ये ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर इट इज रिपीटिंग. तो बाय द डेफिनेशन इट इज एन इरेशनल नंबर. फाइन. और अभी सबको डाउट आ रहा होगा वापस कि अगर पाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है तो हम इसको 22/7 भी तो लिखते हैं. तो 22/7 तो p बाई क्यू फॉर्म में है, क्यू बी नॉट इक्वल टू 0 है, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, फिर तो ये रैशनल होनी चाहिए थी. तो यस 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इरेशनल. द एम्बिग्यूटी हियर इज पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22/7. ये जो 22/7 है ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम सिर्फ कैलकुलेशंस में यूज करते हैं. फाइन, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक. वापस हम टॉपिक पे आते हैं. तो वी वर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. सबसे पहले हमने देखा नंबर्स को हम रियल इमेजिनरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर हम रियल नंबर्स को रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर हमने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन देखी, देन हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा, और अब हम आगे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ द रैशनल नंबर्स. फाइन. तो अब हम रैशनल नंबर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्विकली लुक हियर. So I am again starting with the rational numbers here. Yes. So if we are having rational numbers with us, so we can classify these rational numbers again into टू पार्ट्स. देखो बेसिकली ये दोनों पार्ट एक ही चीज है, दोनों रैशनल नंबर्स ही हैं, दोनों को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन हम रैशनल नंबर्स को भी और वाइड स्प्रेड करके पढ़ना चाहें तो इसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं. एक हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज, मतलब जो पहले से ही p बाई क्यू फॉर्म में गिवन है. एक हम इसको लिख सकते हैं इंटीजर वैल्यूज, मतलब जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. और फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल z, and this z is coming from a German word Zehlin, fine, which means to count. ये इसका क्या मतलब होता है, to count. और integers are represented by this letter z because this z is taken from the German word Zehlin, which means to count. Fine. चलो अब आगे चलते हैं. फ्रैक्शन का मतलब वही, it is in the form of p by q.
ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तीन तरीके के फ्रैक्शंस हमने बेसिक पढ़े, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, हमने तीन जो बेसिक पढ़े वो क्या है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड मिक्स्ड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, proper fraction and mixed fraction. Fine. Improper fraction means your numerator is greater than the denominator. Improper क्यों बोलते हैं? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट आउट ऑफ अ होल, और पार्ट आउट ऑफ अ होल कैन नेवर बी मोर देन द पार्ट कैन नेवर बी मोर देन द होल। तो यहाँ न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है मतलब हम एक से ज्यादा होल ले रहे हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज न्यूमैरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक हमारे पास में होल पार्ट होता है, वन वी आर हैविंग होल पार्ट एंड वन वी आर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। तो उसमें जो फ्रैक्शन होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइन, ये सब आपको पता है, दिस यू हैव स्टडीड इन योर बचपन। अब हम शुरू करते हैं इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स सबको पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स। तो इंटीजर्स को हम फिर से दो पार्ट्स में क्लास, या फिर हम पहले लिख लेते हैं, ये क्या होंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके अप टू -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इंटीजर्स को अगर हम फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, तो अगेन दे आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास में, द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, है ना। तो अगर हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और आगे पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर डब्ल्यू। तो सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डब्ल्यू। आगे देखो, नाउ this whole number can again further be classified into two parts. इसको हम फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, one is zero and one is natural numbers. तो means the whole numbers except zero they are called as natural numbers, या फिर हम इनको बोलते हैं counting numbers. फाइन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर एन। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, 1, 2, 3 से लेके ये हो जाएंगे पॉजिटिव इंफिनिटी तक। फाइन, और फिर हम नेचुरल नंबर्स को भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। Again, we can classify them as even numbers. We can classify them as odd numbers. Even numbers means the numbers which are divisible by 2. Odd numbers means which does not have 2 as their factors. They can be classified as composite numbers. Composite numbers कौन से होते हैं? Composite numbers हमारे पास वो numbers होते हैं जिनके minimum तीन फैक्टर्स होते हैं, हम बोलते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। इसके हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड द नंबर इटसेल्फ 4। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। फाइन, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन इज द नंबर इटसेल्फ एंड वन इज 1। तो जो हमारा पहला प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन। और ये जो 2 होता है, दिस 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड। व्हाई 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देखो 1 के फैक्टर्स तो हम दो बना लेंगे, वी कैन मेक टू फैक्टर्स ऑफ 1, दैट इज 1 एंड 1, लेकिन बोथ द फैक्टर्स आर सेम। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, और वो दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। नेक्स्ट फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स मीन्स वो नंबर्स होते हैं जो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में दो का डिफरेंस है, तो उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, राइट, या फिर ट्विन प्राइम। जैसे मैंने लिखा 3 and 5, so they are twin prime. जैसे मैंने लिखा 5 and 7, so they are also twin prime and so on. So majorly this is the classification of numbers that we have studied. Fine. So next fundamental theorem of arithmetic that we will see in the second video. Thank you everyone for being the part of this class. I hope you enjoy this session. So wait for the next video to understand the further concepts. Thank you.